6 اور 7 کو شب کو جو اس نے پاکستان پہ حملہ کیا، جس میں اس نے سویلینز کو، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، بچے تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، مساجد تھیں، ان کو نشانہ بنایا، اور جواباً جو اس کو ہضمیت اٹھانی پڑی، جس میں اس کے 5 طیارے مار گرائے گئے، ملٹیپل ڈرونز اس کے مار گرائے گئے، لائن آف کنٹرول میں اس کو شدید نقصان، بھاری نقصان جانی بھی اور پوسٹس کا بھی ہوا۔ ہم ہر قسم کی خطرات، ہر قسم کی ایگریشن کو نہ صرف نمٹنا بخوبی جانتے ہیں، نمٹ رہے ہیں، بلکہ اس اگریشن کرنے والوں کو سبق سکھانے کا نہ صرف عزم رکھتے ہیں، اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فوج ملکی سرحدوں کی محافظ۔ 7 اور 8 مئی کی رات کو بھارت نے ایک بار پھر در اندازی کی کوشش کی، دشمن کے بھیجے گئے تمام 12 ڈرونز مار گرائے۔ لاہور میں گرنے والے ایک ڈرون سے 4 جوان اہلکار زخمی ہوئے۔ میانو سندھ میں ڈرون گرنے کے باعث ایک شہری شہید اور ایک زخمی ہوا۔ بھارت کی جانب سے شہری آبادی اور مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے، بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ۔ محشر کا ہے منظر ہر جانے، کیوں رنگ کی زمیں تھر آئی ہے، ہلچل ہے صفوں میں آدھا کی، ہر دل پر ہے بد چھائی ہے، ایک شور جنوں ہے میدان میں، اللہ کا لشکر آتا ہے، ہر مرد مجاہد کا نعرہ دل دشمن کا دہلاتا ہے۔ موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں پاکستانی قوم کی دلی آواز پر نیا ملی نغمہ ریلیز۔ دل گرما دینے والی شاعری اور سحر انگیز آواز نے سما باندھ دیا۔ غالب ہیں خدا کا، وار ہیں ہم، لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم۔ پاکستان دین اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور اس کی فوج اسلام کی فوج ہے۔ پاک فوج کا موٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک صدر رجب طیب اردوان کی ٹیلی فونک گفتگو۔ بھارتی جارحیت کے بعد ترکیہ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کی تعریف۔ بھارت کے بزدلانہ حملے نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ ترک صدر کا پاکستانی شہریوں کی قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار۔ پوری قوت کے ساتھ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف۔ پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا۔ ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں ایسا طوفان برپا کیا کہ دشمن چیخ اٹھا۔ 24 کروڑ پاکستانی نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی بہادر افواج کے ساتھ ایک جری لشکر بن کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ بزدل دشمن بھارت نے نہتے شہریوں پر وار کیا، فحش غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ بھارت کو دندان شکن جواب دیا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے طیاروں کے پرخچے اڑا دیے۔ ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں طوفان برپا کیا، دشمن چیخ اٹھا۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ وطن عزیز کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا قوم سے خطاب۔ بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے ہندوستان کے مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر اس تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا۔ یہ 5 جہاز شاید
10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, उनका होश ठिकाने आ गया है। पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब, तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। रिवायती जंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के दावेदारों के लिए वाज़ेह पैगाम। 3 राफेल समेत दुश्मन के 5 जंगी जहाज मार गिराए। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब। भारतीय तैयारों का कम्युनिकेशन निज़ाम लॉक। शाहीनों ने पाक सरजमीन में दाखिल न होने दिया। दुश्मन की माजी की तरह रात के अंधेरे में हमला करने की नाकाम कोशिश। बहादुर मुसल्लह अफवाज का फौरी, मौसर और मुंह तोड़ जवाब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। अमन पसंद कौम है, लेकिन हम वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत भारत की जानिब से जाहिलियत का मुजाहिरा किया गया। जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। भारत की जाहिलियत, लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करती है। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का मारूफ अमेरिकी टीवी चैनल फोकस न्यूज़ और PBS को इंटरव्यू। राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फजाइया का मौसर जवाब। पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। भारतीय फजाइया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान मार गिराया गया। फ्रांसीसी एहलकार का CNN को इंटरव्यू। राफेल तैयारा गिरने की तस्दीक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान। कशीदगी के खात्मे के लिए मदद की पेशकश कर दी। पाकिस्तान और भारत को खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करता देखना चाहता हूं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। भारत ने पाकिस्तानी सरजमीन पर जारहियत की। हमलों में निहत्थे और बेगुनाह शहरी शहीद हुए। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फौज है। भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। दुनिया पर अपनी फौजी ताकत साबित कर दी। हमारे शाहीनों ने दुश्मन के 3 राफेल तैयारे मार गिराए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अल जज़ीरा TV से गुफ्तगू। भारत का खित्ते में तमाम हमसायों से झगड़ा रहता है। भारत को जवाब देने का माकूल जवाब है। पाकिस्तान को भारत का उधार चुकाना पड़ेगा। भारत ने दिन में 2 मरतबा शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमने भारत में शहरी आबादी को नहीं, सिर्फ मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी मर्जी के वक्त अब मकाम पर जवाब देना पाकिस्तान का हक है। भारत को जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार मुसल्लह अफवाज को दे दिया गया। हुकूमत, इत्तेहादी जमातें और अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिपेंडेंट उर्दू को इंटरव्यू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अहम फैसला। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 को हम वक्त मुस्तैद रहने की हिदायत। रावलपिंडी, मरी, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, नारोवाल, गुजरावाला, हाफजाबाद, सियालकोट में मशक़ें शुरू। दीगर शहरों में भी मॉक एक्सरसाइज जारी। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। फ़ज़ाई हिफाजत के पेश नज़र कुछ रूट्स को हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर महदूद कर दिया जाता है, जिससे इस सेक्टर की परवाज़ें मुतासिर होती हैं। मुसाफिर मामले की नज़ाकत का इदराक करें, एयरलाइन अमले से ताउन करें। मुसाफिरों की सहूलत के लिए PIA कॉल सेंटर से उनके दस्तयाब फ़ोन नंबर पर आगाह किया जा रहा है। तर्जमान PIA। मैं सबसे पहले तो अपनी अफवाज को सैल्यूट करता हूं कि हम सो रहे थे और आप जाग रहे थे। आपने पाकिस्तानी बॉर्डर का भरपूर दफा करते हुए, LOC पे गुमसान की लड़ाई करते हुए जो चौकियां थी जहां से ये शरारत कर रहे थे, तबाह कर डाली। मैं ये बताना चाहता हूं कि हम 24 करोड़ पाकिस्तानी अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। हिंदुस्तान ने अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए बुज़दिलों की तरह रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान की नेफ्ती अवाम पर हमला करके
उसने अपनी कमीनापन का सबूत दिया। भारत की इस जुनूनियत के आगे बंद बांधने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तमाम ममालिक को फौरी तौर पर अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए, भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए। इस वक्त हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। हम अपनी पाक फौज के एक काल पर फौरन हाजिर होंगे और शाना बिशाना लड़ेंगे और इस दुश्मन को जो मजमूम मकासद है इनको हम खाक में मिला देंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब भी खड़े हैं, पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। बुज़दिल भारत ने निहत्ते बेगुनाह शहरियों पर हमला किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी। भारत सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। पाकिस्तानी अवाम सियासतदानों सुन लो वे उलझन वाले ताने बोलो जिथे बाबे ने जन्म लिया साडा सिजदा उस स्थान नू असी मुर्दाबाद नहीं कह सकदे भुल के भी पाकिस्तान नू असी मुर्दाबाद पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी का अपने वतन से वालिहाना मोहब्बत का इजहार, बुज़दिलाना वार पर भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी फौज से मिलकर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर जोर। दिफाए वतन में मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने के आज़म का इजहार। पाकिस्तानी सिख ने वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए गाना भी गाया। भारतीय जाहरियत के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी बने दियारे गैर में वतन की आवाज। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज, बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत। अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार, पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी। तकनीकी मसाइल के बायस भारत में फजाई हादसात में मुसलसल इजाफा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह, 4 अफराद हलाक। इन हादसात ने इदारे की पेशावराना और तरबियती कमजोरियों को बेनकाब कर दिया। दिफाई माहिरीन फरीज़ा हज की अदायगी के लिए पाकिस्तानी आज़मीन हज की मक्का मुकरमा आमद। मदीना मुनव्वरा से 668 पाकिस्तानी आज़मीन पहला काफिले के साथ मक्का मुकरमा पहुंच गए। पाकिस्तानी आज़मीन हज आज अपना पहला फ़र्ज उम्रा अदा करेंगे। मक्का मुकरमा में वजारत हज के DG अब्दुल वहाब सुमरो ने आज़मीन हज का इस्तकबाल किया। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, काली घटाएं छा गईं, मौसम खुशगवार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद। चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश।